Marry, you will regret it. Do not marry, you will regret it. Laugh at the world's follies, you will regret it. Weep over it, you will regret it. Make any choice, you will regret it. There is a kind of exhaustion. एक ऐसी थकान है जो लगातार कुछ काम करके नहीं आती है. It comes from not deciding. एक डिसीजन का वेट आपके मन पे बढ़ने लगता है. You're stuck between choices. Maybe there's a relationship that will limit you. Maybe a career choice that will disappoint you. But you never choose. And आप खुद को कहते हो कि you are being careful, that you are being thoughtful. आप बहुत समझदार बन रहे हो क्योंकि you are weighing your options. And इसी carefulness के नीचे you wait for a perfect choice. Think of a choice that will not lead to any regrets. कोई ऐसी choice जो आपको दर्द नहीं देगी. तो क्या ऐसी choice exist करती है? Soren Kierkegaard noticed this psychological state. And this is what he talked about. But before I discuss about what Kierkegaard wrote, हमें ये समझना पड़ेगा ये किसके perspective से है. This passage is from the book Either Or, and इस book में he writes through two different characters. One is an aesthete and the other one is an ethical judge. और ये passage एक aesthete के perspective से है. Aesthete इस book में is a very intelligent and a very articulate person, but he chooses possibility over permanence. He chooses mood over commitment. वो सफरिंग से नहीं डरता है, वो डरता है अपने सारे रास्ते बंद करने से. एक एस्थेट के लिए सफर करना आउट ऑफ चॉइस इतना मैटर नहीं करता है जितना बीइंग लॉक्ड इनटू चॉइस मैटर करता है. कोई रास्ते नहीं रहते हैं. व्हेन यू कमिट टू अ पाथ, एंड दैट इज द ओनली पाथ यू हैव टू टेक, एंड दिस इज व्हाट एन एस्थेट अवॉइड्स. सो एस्थेट क्या करता है? ही स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट इट, ही स्टार्ट्स टू एनालाइज इट, ही स्टार्ट्स टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द चॉइस ही हैज टू मेक. द एस्थेट prefers freedom over obligation, and यही cleverness उसे wisdom की तरह sound करती है. यहाँ पे aesthete has made avoidance sound like intelligence. So we are back at the same passage. इस passage में basically ये दिखाया गया है कि शादी करोगे तो भी पछताओगे, शादी नहीं करोगे तो भी पछताओगे, किसी का भरोसा करोगे पछतावा, किसी का भरोसा नहीं किया पछतावा. Take your life seriously, पछताओगे. बहुत लाइटली ले लो फिर भी पछताओगे. यहाँ पे एस्थेट अंडरस्टैंड्स कि there is no choice that guarantees safety. कि जो रिग्रेट है it is fundamental to life. जब आप एक पाथ चूज कर रहे हो, सेम ही टाइम पे बहुत सारे पाथ आप चूज नहीं कर रहे हो. Commit to someone and you lose freedom. Don't commit to someone and you lose intimacy. Take a secure life and you miss out on different possibilities. Choose risk and you miss out on stability. एस्थेट अंडरस्टैंड्स दिस एंड इसी चीज को वो अवॉइड करता है. दिस फंडामेंटल ट्रुथ कि लाइफ में रिग्रेट फंडामेंटल. मेक एनी चॉइस यू विल रिग्रेट इट. यहाँ किर्केगार्ड की जो बात है हमें और गहराई से समझनी चाहिए. किर्केगार्ड इज नॉट सेइंग कि वी रिग्रेट बिकॉज वी चूज बैडली. वी रिग्रेट बिकॉज वी आर फाइनाइट. वी ओनली हैव वन लाइफ एंड हर मीनिंगफुल चॉइस क्लोजेस आउट अदर मीनिंगफुल लाइफ्स. यही बात एस्थेट समझता है and he hates it. When he knows कि choice करने पे there will be regret. He wants a life without irreversible loss. So he thinks कि if choosing leads to loss, then I will suspend it. I will never choose. वो कहते हैं कि aesthete thinks if I start, I will regret it. If I don't start, I will regret it. So I neither start nor not start. And this overthinking is elevated into philosophy. And we know this state well. If I don't start, I don't have to stop. हमने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है. Endless preparation, endless clarity seeking. I'm not ready yet. मैं बाद में करूँगा. मुझे और वक्त चाहिए समझने के लिए. पर ये बाद में कभी नहीं आता है. The aesthete understands this. And यही aesthete की philosophy unrefutable बन जाती है. क्यों? क्योंकि it asserts nothing. It commits to nothing. It risks nothing. हम वो चीज़ रिफ्यूट ही नहीं कर सकते हैं जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं है. यू कैन नॉट रिफ्यूट समवन हु डज नॉट स्टैंड एनीवेयर.
अगर आपने अभी तक समझा नहीं है तो किरकेगार्ड हमें पछतावे बारे वार्निंग नहीं दे रहा। ही इज वार्निंग अस अबाउट डबल रिग्रेट। यू चूज समथिंग यू विल रिग्रेट इट, एंड इफ यू डोंट चूज समथिंग यू विल रिग्रेट इट। पहला दर्द देगा, दूसरा आपको खोखला कर देगा। सो यू विल रिग्रेट बोथ इज नॉट नाइलिज्म, इट इज अबाउट मेकिंग द चॉइस। ऐसे इंसान के लिए डिस्टेंस बिकम्स आइडेंटिटी। उसे लगता है कि वो समय से परे जी रहा है, उसे लगता है वो घाटे से परे जी रहा है। पर लाइफ इटर्निटी में नहीं बीती जाती है, लाइफ हैपेंस इन टाइम। ऐसे पल जो कभी वापस नहीं मोड़े जा सकते। लाइफ हैज चॉइसेस दैट लीव स्कार्स। यही चीज हम अवॉइड करते हैं। सो द कंक्लूजन इज सिंपल, देयर इज नो लव विदाउट वल्नरेबिलिटी, देयर इज नो कमिटमेंट विदाउट लॉस, देयर इज नो आइडेंटिटी विदाउट सैक्रिफाइस। सो सवाल ये नहीं है कि मैं पछतावा कैसे अवॉइड करूं, सवाल ये है कि मैं किस पछतावे से जिंदगी जी सकता हूं। व्हाट बर्डन्स, व्हाट रिग्रेट्स कैन आई कैरी।